نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت مسائل کے گرداب اور قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جبکہ جماعت اسلامی کی ترازو ٹیم نے عزم کیا ہے کہ حیدرآباد کی عظمت رفتہ بحال کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں بنو قابل پروگرام دیا۔ کراچی میں کوئی 10,000 کے قریب نوجوان، 1,000 کے قریب نوجوان ٹرینڈ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے سینکڑوں کی تعداد میں فری لانسرز بن کر آج خود بھی اپنی معاش پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈالرز دلوا رہے ہیں، جس کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی حیدرآباد کے 120 نوجوانوں کو ٹریننگ دی ہے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے شہر حیدرآباد سے کہ جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں کے اوپر اعتماد کریں۔ اس سندھ کے حیدرآباد کو انشاءاللہ حیدرآباد دکن جیسا IT سٹی بنائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے گزشتہ 5 سالوں میں IT کی وزارت MQM کے پاس رہی ہے، 3.5 سال خالد مقبول صدیقی، 1.5 سال امین الحق، لیکن وزارتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، جھنڈے والی گاڑی مل جاتی ہے، پروٹوکول مل جاتا ہے، گھر مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، عوام بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ترازو ٹیم نے عزم کیا ہے کہ حیدرآباد کو انشاءاللہ پاکستان کا ایک ترقی یافتہ شہر بنائیں گے، اس کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے، عوام کے سلگتے حقیقی مسائل پر آواز بلند بھی کریں گے اور ان مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی وڈیرہ شاہی نے سندھ اور خصوصاً حیدرآباد کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیا ہے، جبکہ بے وفا MQM پاکستان، اس کی جھولی میں حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حیدرآباد کا اہم ترین مسئلہ رہائشی کالونیز کے لیے ادارہ ترقیات حیدرآباد HDA اس شہر کو ترقی دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اس نے تو شہر کو ترقی نہیں دی، زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، پارکوں پر قبضے ہو گئے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے کھیلنے کے میدان نہیں ہیں، اور باقی جو رہ گیا ہے وہ بھی اسی طرح بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ترازو ٹیم منتخب ایوانوں میں پہنچی تو حیدرآباد کی تعمیر اور ترقی کر کے اسے انشاءاللہ پاکستان ہی نہیں دنیا کے ترقی یافتہ ترین شہروں کی صف میں لا کر کھڑا کریں گے۔ ہم HDA کے ذیلی ادارے واسا کو ختم کر کے ایک نمائندہ ادارہ واٹر بورڈ بنوائیں گے، اور دیہی و شہری عوام کو پینے کا صاف پانی اور نکاسی آب کا جدید نظام دیں گے۔ جماعت اسلامی یہ عہد کرتی ہے کہ اندھیروں، ناکامیوں، مایوسیوں سے انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو نکالیں گے، اس حیدرآباد میں تعلیمی اداروں کا جال بچھائیں گے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے آج کی دنیا IT کو انشاءاللہ حیدرآباد کے نوجوان ترقی دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد ایک مرتبہ پھر خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ حیدرآباد میں الیکشن کی تیاریاں عروج پر۔ شہر میں NA 219 کے حلقے میں سیاسی کارکن خون جما دینے والی سردی میں بھی رات گئے تک اپنی سیاسی جماعت کے لیے ووٹنگ لسٹ پر کام کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عمران سعید سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ رات گئے تک خون جمانے والی سردی میں MQM کے الیکشن آفس میں کارکنان اپنے امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ خواتین مشترکہ جدوجہد
कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी, क्योंकि मेहनत में किसी किस्म की हमने कमी नहीं छोड़ी। पतंग के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पतंग हमेशा जीतती आई है और इस साल बहुत अक्सरियत से जीतेगी, और निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीरें। ये पतंग का निशान हमारी तकदीर बदल देगा। वडेरे का ना ताजिर का, पाकिस्तान महाजिर का, हमने किया है अपनी खताओं का एहतिसाब, और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी के अंदर हम फतेह और कामरानी हासिल करेंगे। सख्त तरीन सीज़न चल रहा है अभी, और इस सीज़न में सर्दी के MQM के कारकुनान के हौसले और बुलंद हो गए हैं, और इस सर्दी में देर रात वो सड़कों पर ही हैं और अपने पार्टी परचम लगा रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन ऑफिस में बैठ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला MQM के कारकुनान पूरी मेहनत करके इस सीट को और MQM की जो सीट रिवायती सीटें हैं उन सबको इंशाल्लाह ताला हासिल करेंगे। MQM के तमाम इलेक्शन ऑफिस में ऐसा ही रश है, आपको कराची में भी ऐसा ही रश मिलेगा, हैदराबाद में तमाम इलेक्शन ऑफिस में ऐसा ही रश है, और दूसरी पार्टी के इलेक्शन ऑफिस जो है वहाँ ताले लग चुके हैं और वो लोग नहीं होते, पर MQM वाहिद जमात है जिसके इलेक्शन ऑफिस आधी रात तक खुले रहते हैं। आप ये देख रहे हैं रात का टाइम हो रहा है और तमाम कारकुनान हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह का करम है कि रात और दिन हम मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आप देखेंगे कि MQM पाकिस्तान पूरे हैदराबाद से विन करेगी इंशाअल्लाह। हर जगह, हर ऑफिस में कहीं भी आप चले जाएं, हमारे ऑफिस 24 घंटे खुले मिलेंगे आपको। तमाम यूनिट ऑफिस, मरकजी ऑफिस जितने भी हैं, सारे सब जगह काम चल रहा है। हमारे कारकुनान जो है सब रातों को भी तमाम काम कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं अपने तौर पे। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, वो तो अपने जो ना पैसे देते हैं और काम कराते नहीं। हमारे MQM पाकिस्तान में ये नहीं होता। MQM पाकिस्तान में कारकुनान खुद अपने तौर पे काम कर रहे हैं। आप कहीं भी इलाके का विजिट कर लें, पूरे यूसुफ 63 का, कहीं भी पूरे हैदराबाद में, लतीफाबाद में, जहां भी जाएंगे आपको नजर आएंगे झंडे लगाते हुए, पतंग लगाते हुए। और यही हमारे MQM के कारकुन का रहा है कि हमेशा से कि हम खुद अपने तौर पे काम करते हैं। हमारे जिम्मेदार भी बैठे हुए हैं यहाँ, टाउन मेंबर वगैरह सब बैठे हैं और काम चल रहा है। और इंशाल्लाह अभी जब तक काम नहीं खत्म होगा हम यहाँ मौजूद रहेंगे, और सुबह फिर आ जाते हैं रोजाना। अल्लाह का शुक्र है, तमाम जो है उम्मीद है हमें, और आवाम से भरपूर इंशाल्लाह हम गुजारिश करते हैं कि 8 फरवरी को तमाम लोगों को बाहर निकलना है और पतंग पे मोहर लगानी है, और दुश्मनों को बता देना है कि यह हैदराबाद शहर सिर्फ MQM का था और MQM का है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पूरे हैदराबाद से आपको पतंग ही पतंग नजर आएगी। MQM का जो भी कारकुन होता है या जो भी उम्मीदवार होता है, हम उस उम्मीदवार को टिकट MQM पाकिस्तान देती है जिसमें सलाहियत होती है काम करने की और जुस्तजू होती है, उसी को टिकट दिया गया है। और अगर वो काम नहीं करता तो MQM उससे जवाब भी तलब कर लेती है। जो यहाँ पर मौजूद है, कामरान कुरैशी साहब PS से और प्रोफेसर अब्दुल अलीम खानदादा साहब NA से, इंशाल्लाह दोनों उम्मीदवार हमारे तालीम याफ्ता और काबिल एतमाद शख्सियतें दोनों, जो कि भरपूर तरीके से इंशाल्लाह अवाम के तमाम तर मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि रात के 3 बज रहे हैं, उसके बावजूद ठिठुरती हुई सर्दी है, खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे ऑफिस का देखें सारे लोग किस तरह से यहाँ मौजूद है। हैदराबाद में कोई ऐसी जमात नहीं है MQM पाकिस्तान के अलावा जो इस तरह के, ना उनके पास कोई कारकुनान है और ना हम किसी को 1 रुपया भी नहीं देते। यकीन करेंगे हमारे कारकुनान बेलौस खिदमत करते हैं। जिस तरह से हमारे MPMA ने नॉमिनेट होके आते हैं, वो भी हैदराबाद के लोगों के लिए बात करते हैं, वो भी हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद के हवाले से जितने भी हमारे हल्के के जो भी उम्मीदवार आते हैं, मैं साबिर भाई भी हमारे NA के उम्मीदवार थे पहले, उसके बाद नदीम सिद्दीकी भाई भी हर दम अवाम में मौजूद रहते हैं। आपने अक्सर देखा हुआ हमारे MPMA को, आपको कोई भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो दूसरी पार्टी के लोग कहीं नजर आते। हमारी चाहे किसी की खुशी हो, किसी का गम हो या काम के हवाले से हो, आप ये देखेंगे पूरे हैदराबाद के रोड हमारे MQM पाकिस्तान में बना है। किसी एक जमात ने एक ईंट हैदराबाद में नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि पूरे हैदराबाद में अगर काम हुआ है तो MQM पाकिस्तान ने करा की वजूहत ही यही है। अगर जो हमारे जो MPMA ने जो नॉमिनेट होकर आते हैं तो वो उनके दरमियान मौजूद होते हैं,
تو جو کارکنان ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھرپور تعداد میں ان کو سپورٹ کریں, بھرپور تعداد میں ان کے لیے محنت کریں, کیونکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں نا. ایسا تھوڑی ہے کہ اگر گاؤں اور گھوٹ کی نواب شاہ سکرنڈ سے سکر وہاں سے جیتے رہتے کرکٹ ڈیفینس میں 5 سال کے لیے الیکشن کے لیے وہاں پر آتے ہیں, پھر اس کے بعد 5 سال وہ ڈیفینس کے لیے میں گزار دیتے ہیں. تو یہاں پہ تو ایسا نظام نہیں ہے نا. یہاں تو آپ دیکھیں گے ہمارے ایم پی ایم این انشاءاللہ ابھی نومینیٹ جو نئے ہمارے جو ایم پی ایم این آئیں گے وہ بھی نومینیٹ ہوں گے, وہ بھی ہمارے درمیان رہتے ہیں ہمارے کارکنوں کے. ہم ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم اپنے نظریے کے تحت 98% غریب متوسط طبقے کے حقوق کے لیے جنگ کرتے رہیے, لڑتے رہیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اپنے 98% غریب اور متوسط طبقے کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی. اور ہمارا جذبہ انشاءاللہ جوانوں سے زیادہ ہے. میری عمر اس وقت 70 سال ہے, لیکن ہم اس سخت سردی میں اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرانے کے لیے, ایم کیو ایم کے نمائندوں کو کامیاب کرانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھاری تعداد میں انشاءاللہ ہم اپنے عوامی نمائندوں کو کامیاب کریں گے. جس طرح ہم اس سردی کے اندر ایم کیو ایم کے لیے کام کر رہے ہیں, اور میں ہی نہیں, میرے علاوہ بھی بزرگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ آج آپ کو الیکشن آفس میں رات 3 بجے نظر آ رہے ہیں. تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ بھائی سردی تو آج کچھ دن کی ہے, لیکن یہ قوم کا مسئلہ ہے, ہماری اجتماعیت کا مسئلہ ہے. تو ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, ایک اپنے حق پرست امیدواروں کو ہمیں کامیاب کرانا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن آفس میں کارکنان نے ہمیں بتایا کہ ہماری جدوجہد اور خون جمانے والی سردی میں ہماری امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے اس قوم کی بقا ہے. کیمرامین امتیاز یوسف زئی کے ساتھ عمران سعید, اسپیشل ٹی وی, حیدرآباد. پاک پتن میں حلقہ پی پی 194 کی نشست پر آزاد امیدوار کی بہن نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی الیکشن مہم چلانے کا اعلان کر دیا. طارق محمود کمبو کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. پاک پتن کے شہری حلقہ پی پی 194 سے آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار کی ہمشیرہ صفیہ رانا احمد علی نے لیگی امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کر لیا. پریس کانفرنس کے دوران صفیہ احمد علی نے اپنے بھائی کے خلاف مسلم لیگ نون کے امیدوار جوید احمد کی کمپین چلانے کا اعلان کر دیا. میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ سدا بادشاہی میرے اللہ کی. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آپ لوگ جس شخص کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ تو اپنے سگے رشتوں کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے. وہ پاک پتن کی عوام کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اور آپ سب سے اپیل یہ ہے کہ غلط کا ساتھ مت دیں, سچ کا ساتھ دیں, صحیح کا ساتھ دیں. میں خود چودھری جاوید انکل کا ساتھ دینے آئی ہوں اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ سب لوگ بھی ان کا ساتھ دیں. صفیہ احمد علی ارائی نے الزام عائد کیا کہ میرے بھائی نے مجھے وراثتی جائیداد سے محروم کیا. جو سگے رشتوں سے مخلص نہیں وہ عوام سے مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ صفیہ احمد علی ارائی نے پاک پتن کی عوام سے اپیل کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے میدان میں اتارے گئے حلقہ پی پی 194 کے امیدوار چودھری جوید احمد کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں. گجرانوالہ میں پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود ابھی تک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہ کی جا سکی, جس سے مسافر نالا نظر آنے لگے, جبکہ ضلع انتظامیہ اور سیکٹری آر ٹی اے سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں حسان بھٹی. جی حسان, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل, حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے کمی کر دی گئی ہے. 8 روپے کمی کے بعد جو پیٹرول کی نئی قیمت ہے وہ 259 روپے 64 پیسے جو ہے مقرر کی گئی ہے. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کے باوجود ابھی تک جو ہے جو ٹرانسپورٹ مالکان کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں جو ہے ابھی تک کمی نہیں کی گئی, جس سے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے. اس وقت جو ہے میں گجرانوالہ کے بس اسٹینڈ پر موجود ہوں, یہاں پر میرے ساتھ مسافر بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. اچھا بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے کرایوں میں کمی کی گئی ہے کہ نہیں؟ نہیں جی, دیکھیں پٹرول کی قیمت جب اضافہ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ گاڑیوں والے جو ہیں وہ اس میں کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ اسی بنیاد پہ کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ کرایوں میں کمی نہیں کی گئی. ابھی آپ اگزامپل لے لیں کہ وزیر آباد کا کرایہ یہاں پہ 120 لکھا ہوا ہے, لیکن جب یہاں سے بٹھا کے چلے جاتے ہیں وہ 150 کرایہ جہاں جا کے لے. ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر
पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई है, हुकूमत इसका नोटिस ले, कमी के साथ ही किरायों में भी कमी होनी चाहिए ताकि मुसाफिर को इसका जो है ना वो। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है मुसाफिर की गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर मालिकान की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है इजाफा कर दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब अगर किरायों की बात करता चलूँ तो गुजरावाला से जो फैसलाबाद का किराया है वो 750 रुपये, लाहौर की बात करते चलें तो कोस्टर का 370, जबकि टोयोटा का जो है वो 280 रुपये जो है किराया मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब अगर गुजरात की बात करता चलूँ तो 220 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है, और अगर मैं वज़ीराबाद की बात करता चलूँ तो 120 रुपये से लेकर 150 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। तो किरायों में इजाफे के हवाले से जो मुसाफिर है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और सेक्रेटरी RTA को चाहिए कि जो पेट्रोलियम जो किरायों में इजाफा किया गया इसे जो है फ़ौरन वापस लिया जाए ताकि जो मुसाफिरों को मुश्किलात हैं वो हल हो सकें। जी अब रुख करते हैं बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर ज़िला सिब्बी का, जहां लियाकत बाजार में मोबाइल की दुकान पर डकैती की वारदात पर सिब्बी पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। स्पेशल टीवी को डकैती की CCTV वीडियो मौसूल हो गई। इस हवाले से नुमाइंदा स्पेशल TV सिब्बी शौकत सोलंगी की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। जी, सिब्बी लियाकत बाजार में दिन दिहाड़े हिंदू ताजिर के मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई। डाकू ने मोबाइल फ़ोन नकद रकम लूट कर फरार होने में कामयाब हुआ। सिब्बी पुलिस को जैसे ही इतला मिली, अबाबिल फोर्स के जवानों ने डाकू का पीछा करते हुए सिब्बी से चंद किलोमीटर दूरी पर जंगल नुमा इलाके में डाकू को गिरफ्तार कर लिया। डाकू की शनाख्त मोहम्मद जमान वल्द मोहम्मद नवाज कौम सिलाची से हुई। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी। इस बर वक्त और ग्रैंड ऑपरेशन में SSP सिब्बी पुलिस जनाब अनैतुल्लाह बंगुल्ज़ई ने बज़ाते खुद हिस्सा लिया और अपने पुलिस के जवानों और अफसरान के हमरा रहे और डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। कामयाब कार्रवाई में SHO सिटी थाना सिब्बी ज़काउल हसन गुजर, SHO सदर थाना सिब्बी ग़ुलाम जिलानी, अबाबिल फोर्स इंचार्ज मीर लश्करान गिशकोरी और ग़ुलाम अली साहब ने अबाबिल फोर्स के जवानों के साथ कामयाब कार्रवाई की, जिस पर SSP सिब्बी पुलिस जनाब अनैतुल्लाह बंगुल्ज़ई साहब को, शहरियों और ताजिर बिरादरी ने और पुलिस अफसरान को फूलों के हार पहनाए और खूब सराहा। की फौरी कार्रवाई से ये सब कुछ रिकवर हो गया, चोर भी पकड़ा गया, सामान भी बरामद हुआ, पैसे भी बरामद हुए। सिब्बी अंजुमन ताजरान की जानिब से जवानों के लिए मैं अपनी तरफ से 20,000 रुपए का SSP सिब्बी जनाब अनैतुल्लाह बंगुल्ज़ई साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आप लोग इस वक्त तशरीफ़ ले आए। गुजारिश ये है कि आज 4 बजे के करीब हमें इतला मिली कि जो है ना बाज़ार में एक मोबाइल की दुकान में डकैती हुई है, और डकैती के फ़ौरन बाद जो ही हमें इतला मिली है तो हमारी ऑलरेडी जो पेट्रोलिंग पे हमारे अबाबिल फ़ोर्स के जवान थे, उन्होंने उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से ये वारदात करके जा रहा था, उसी डायरेक्शन में उसको जो है ना फॉलो किया है। उसके फ़ौरन बाद हमारे जो है ना SHO साहिबान सिटी और सदर दोनों, उसके अलावा मैं पर्सनली जब मुझे पता चला तो मैंने भी इनके पीछे जो है ना मैं भी निकला हूँ। तो हमारे जवानों ने इसको, ये निकला है मरगज़ानी की तरफ से, मरगज़ानी गाँव की साइड पे निकला, वहाँ से आगे जंगल में ये घुसा है। तो जवानों ने हमारे इनका पीछा किया है। 3 अबाबिल फोर्स के जवान थे, वो उनके पीछे थे। 3 मोटरसाइकिलें आगे जाके जो है ना हमारे एक जवान की मोटरसाइकिल जो है ना कीचड़ में फंसी है। बाकी उन्होंने 2 मोटरसाइकिलों पे जाके इस बंदे को आगे ये मोटरसाइकिल से गिरा है और भागने की कोशिश की है। तो जवानों ने इसको घेरे में लेकर इसको हैंड्स अप किया है। इसने भी पिस्टल एम किया है जवानों पे, तो जिस पे जवानों ने इसको कॉशन दी है कि आप अपना पिस्टल फेंकें, अगर आप फायर करेंगे तो हमारी तरफ से भी फायर आएंगे और जिसमें आपकी जो है ना मौत भी वाक़या हो सकती है। तो जिस पे इसने अपना पिस्टल फेंका है और फिर हमारे जवानों ने उसको काबू किया और उसको पकड़ा और उसके जेब से पिस्टल और उसके जेब से जो है ना पैसे वगैरह जो है ना बरामद हुए हैं। मज़ीद इस पे हम तफ्तीश कर रहे हैं, जो चीज़ें ये लेकर गया है और कहाँ पे फेंका है, तो उस पे हम मज़ीद कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिब्बी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर सिब्बी शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शौकत सोलंगी, स्पेशल TV सिब्बी बलूचिस्तान।
ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में चोरी और डकैती की वारदातें न थम सकीं। शहरी की मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी ने मौसूल कर ली। रोजाना की बुनियाद पर वारदातों से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में रोजाना की बुनियाद पर चोरी और डकैतियों का सिलसिला जारी है। पुलिस डकैतियां और चोरियां रोकने में नाकाम दिखाई देती है। थाना सदर के इलाके 33-L में वली मोहम्मद वल्द अहमद अली सब्जी मंडी के व्यापारी कार पर जाते हुए थोड़ा पानी में 3 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने असले के जोर पर 2,50,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन्स छीन लिए। दूसरी बड़ी वारदात 27-L में मोटरसाइकिल सवार रिजवान वल्द मोहम्मद अशरफ से 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। जबकि तीसरी वारदात दारुल एहसान टाउन पैदल चलते हुए मोहम्मद अहमद वल्द गुलाम मुर्तजा से 2 नामालूम डाकुओं ने 70,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार। इसी तरह बाबर शाह M जिना रोड पर डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी के लिए गया तो मोटरसाइकिल नामालूम चोर ले गया। चोरी करते हुए मोटरसाइकिल की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह चोर मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो रहा है। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मीरपुर खास सेंट्रल जेल में माहौल को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी। DIG नासिर खान ने नर्सरी और खेलों का इफ्तिताह कर दिया। मीरपुर खास से ब्यूरो चीफ असद अली बलोच की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सेंट्रल जेल मीरपुर खास में पुलिस एहलकारों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए कैदियों के साथ गेम खेलने और सेंट्रल जेल को खूबसूरत बनाने के लिए नर्सरी भी बना दी गई। इस मौका पर DIG सेंट्रल जेल खानाजात नासिर खान ने नर्सरी और खेल के मैदान का इफ्तिताह कर दिया। DIG नासिर खान का कहना था कि कैदियों को अच्छा माहौल फराहम किया जा रहा है, जबकि पुलिस अमले के लिए खेलों का भी इंतजाम कर दिया गया है। इस मौका पर SSP सेंट्रल जेल शहाबुद्दीन सिद्दीकी का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन को ड्यूटी के बाद भी अच्छा माहौल फराहम किया जा सकेगा। सेंट्रल जेल मीरपुर खास में नर्सरी का क़याम किया गया है। ये करेक्शनल फैसिलिटीज़ के हवाले से हमें इस वक्त मॉडर्न टेक्निक्स पे काम करने की ज़रूरत है, तो इस पर हम अमल पेरा हैं। कोशिश है। सिंध हमारा पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने लीड किया है और करेक्शनल फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। इसी तरह से सेंट्रल जेल मीरपुर खास में इंडोर गेम्स का एहतमाम किया गया है स्टाफ के लिए। जो हमारा स्टाफ अंदर हेक्टिक जॉब परफॉर्म कर रहा है इनमेट्स के साथ, वो कुछ टाइम के लिए अगर इंडोर गेम में उसको हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक रिलैक्सिंग माहौल उनको मिलता है और उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है। ग्रीन फाउंडेशन के नवाज खान और दीगर सहाफ़ियों ने गेम रूम्स और सेंट्रल नर्सरी के बारे में तफसीली गुफ्तगू भी की। हाफजाबाद में 13 रजबुल मुरज्जब बसिलसिला जश्न आमद हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम की खुशी मनाते हुए जगह जगह केक काटे गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हाफजाबाद से ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आज 13 रजबुल मुरज्जब मौला अली की आमद के सिलसिला में मोमिनीन जगह जगह खुशी में केक काट रहे हैं और उनकी आमद के हवाले से जगह जगह जश्न हो रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ मोमिनीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो मौला अली की आमद के सिलसिला में क्या कहते हैं। अफजल है अली सारे वली कहते हैं, इस नूर को नूर जली कहते हैं। होती है जहां अकल की परवाज़ उस आखिर मंजिल को अली कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली की वलादत में अल्हम्दुलिल्लाह हम झूम झूम करके मौला अली का जश्न मना रहे हैं। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। क्यों भटक रहे हो अकबत गरी के लिए, मौला अली का नाम ही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। हम मौलाए अली बादशाह का जश्न बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज मोमिनीन का कहना है कि आज 13 रजब मौला अली की आमद के सिलसिला में हम जश्न मना रहे हैं और केक काट रहे हैं, और इनका कहना है कि आने वाले सालों में भी इसी तरह ये जोशो खरोश से मौला की आमद का सिलसिला जो है इसी तरह केक काट के मनाते रहेंगे। जी उधर मीरपुर माथेलो में भी हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम का जश्न विलादत मोमिनों और अज़ादारों ने मिलकर मनाया।
राजा अली कुरैशी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। जिनका नाम लेना इबादत, जिनका जिक्र करना इबादत, जिन पे जान मेरी फिदा, मेरे मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम की 13 रजब को विलादत हर साल की तरह इमाम बरगाह हुसैनिया में मनाई गई। कसीदा खानों ने कसीदे पढ़ के, नात खानों ने नात पढ़ के और अली के मुहिबों ने नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ राजा अली, स्पेशल टीवी, मीरपुर मथेलो। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।